Okay, one very important thing I wanted to know before I'm going to give it out to the question answers. You being a brilliant dancer, movement comes very naturally to you. And this is to both of you. So does the action look far better? Because, sometimes people like us become like a block. You can't move that much. Does it make it a lot better? Because there's a lot of movement like that. Because he's so supple. Did that help a lot as well? Actually, with Shahid, one thing which was never a problem to me was the action. Because it is also a rhythm, act because you're not really fighting, So because he has a great understanding of movement, dance, for him everything was very, very easy to adapt into. And my action directors and most of the team which has shot action is all international. And when they looked at him and when he used to come for the rehearsal, they used to be like, wow, he knows his beats, he understands, he has a process of understanding. And 99% of the action that you see in the film is real hand to hand, and he's done it all. That's a different thing, that he lost a lot of weight doing the film because action really drains you. But everything. Ye secret hai? Ye secret hai for the jawline with action. Because I'm seeing you. Arey nahi yaar, it's damn difficult with 1.5-2 दिन में. And also this is a film we shot very fast. Yes. If you know how many days we shot this film, you'll fall down. Only this guy, I don't know how he did it. We have shot this film in 36 days. What? 36 days we have shot this film. Because this is the only way we could make the film. Because he didn't want to compromise on the scale of the film, so he just cut down the number of days. And that's why he's saying that it was intense. Yeah. Brilliant. I think मैंने बहुत सारे सवाल कर लिए हैं. आप लोग, I'll leave it out and open it to the audience as well. Please go ahead and we've got the mics that This movie, Bloody Daddy. Bloody I can understand, but why the daddy word is there? Because I'm your daddy. No, that's the context. I think the context is that, वो गाना है ना, सीधी कर गल करा, real talk. I'm the real boss. So, daddy is a word you use in that context as well. The rest of it, when you see the film, I'm sure you'll understand why the word is there. And bloody तो अभी तो blood तो दिख ही रहा है. But I don't want to talk too much, but जब आप film देखेंगे तो it will be clear why that word is there. But it's also used in terms of like with attitude and style, like in that, like Big Daddy, like in that way. Is there any song in this movie? Ali, is there any song in this movie? Yes, there Do I is. feature in that song, Ali? Do I get to dance in your film? It's a different film than the film that I've done before, because there is song, गाने हैं, लेकिन वो गानों का picturization बहुत अलग तरह से किया गया है. जैसे आपने देखा ट्रेलर में, the story is about one night. What happened in that one night in that hotel. So गाने हैं, आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको गाने भी मिलेंगे, बहुत सारी कॉमेडी भी मिलेगी, quirky कॉमेडी मिलेगी, दिल्ली की action milega. So there's a lot in the film that is packed in 2 hours. And my favorite song in the film is the one on which I am actually doing action and not doing dance. So I thought that was a really cool idea. He said, sir, we're making an action film, we're going to be pure, and I'm going to give you a song, but you're going to be doing action on it. So I thought that was super cool. Yes, next please. Hi Shahid. Hi, I'm with you. Please go ahead with the question, we can hear. Yes. Yeah, hi Shahid, towards your right, this side, Aditi here. Yes. Hey, hi Aditi. Hi, how are you? I'm great, how are you? I'm great as well. The trailer looks absolutely amazing. I have to ask you this, in India, the quality of movies and especially action related movies now, they're very much compared to Hollywood movies as well. And because of that, the amount of authenticity which Indian movies bring in action, it gets overshadowed. So do you think a film like Bloody Daddy can bridge that gap and, bring out that potential in the Indian movies when it comes to action genre? देखिए, फर्स्टली तो मैं कोई ऐसे टॉल क्लेम्स कि हमारी फिल्म कुछ रीडिफाइन कर देंगे, आई थिंक वो अच्छा नहीं लगता. हमने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है. जैसे अली ने कहा कि दिस इज मेड फॉर एन ऑडियंस जो ऑल ओवर द वर्ल्ड, OTT गेट्स कंज्यूम्ड एवरीवेयर साइमल्टेनियसली. तो ऑफ कोर्स उनके माइंड में ये होगा, बट आई थिंक अली का एक्शन यूजुअली बहुत ही ग्रिटी और बहुत ही एजी और न्यू एज होता है. इसमें बिकॉज हम एक सर्टेन जॉनर की फिल्म बना रहे हैं, वी हैव गॉन मोर टुवर्ड्स रियल, बट उस रियल के अंदर अली का फ्लेवर तड़का आते रहता है. एंड एक्चुअली दैट्स व्हाट मेक्स इट वेरी एंजॉयबल कि ऑन वन हैंड ऐसा भी है कि आपको लगता है ये एक्चुअली हो रहा है, ऐसा नहीं लगता अरे यार ये सिर्फ फिल्मों में हो रहा है.
बट उसका जो एक जो एक एड्रेनलिन रश मिलता है, जो एक मज़ा आता है कि अरे यार मज़ा आ गया, आई थिंक इस फिल्म में उन्होंने उसको कंबाइन करने की कोशिश की है. एंड आई थिंक दैट इज़ अ वेरी बिग यूएसपी फॉर द वे द एक्शन. दैट्स वाई ज़्यादातर सवाल जो आ रहे हैं वो इसकी स्लिकनेस के बारे में या इसके एक्शन के बारे में ही आ रहे हैं, बिकॉज इट्स आई थिंक अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ लुकिंग फिल्म. इट हैज़ अ वेरी फ्रेश काइंड ऑफ विजुअल ग्रामर, सिनेमैटिक ग्रामर. और एक्शन ग्रिटी मुझे भी पर्सनली पसंद है. अगर एक्शन में इमोशन ना हो, अगर एक्शन के अंदर फीलिंग नहीं आए कि कैरेक्टर घुसा हुआ है उस सिचुएशन में, तो मज़ा भी नहीं आता. सो वीव ट्राइड आवर बेस्ट एंड आई थिंक इंडियन फिल्म्स आर गेटिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर. और जो हिंदी फिल्म दे सकती है ना, वो हॉलीवुड फिल्म नहीं दे सकती. शायद हम थोड़ा सा भूल गए कुछ टाइम से, लेकिन वो आएगा. अच्छी फिल्में आएंगी तो वो फीलिंग वापस आएगी. हम हिंदुस्तानी हैं, हमें बाहर जाके चाइनीज खाना और ये सब अच्छा लगता है, लेकिन घर आके जो अपना घर का खाना है, दाल मखनी जो होती है ना, वो दाल मखनी होती है. उसका जो मसाला होता है, उसका मसाले का टेस्ट ना वो बाहर कहीं मिलता नहीं है. तो हो सकता है बेहतर फिल्में बनाने का टाइम आ गया है, लेकिन इस फिल्म में वो सब मिलेगा. हिंदुस्तानियत भी मिलेगी, which is what I really like about this film. In fact, if I may just add, and I really like when he says that there is no tall claim, or there is, it's very nice that when your film on the public domain is compared or drawn a parallel to a nice action flick, and they're comparing it. But the whole idea for them to partner, in the creative energies was the relentlessness in the action, which I feel has not been seen lately, and especially when everybody is confined to home. तरह के एक्शन होते हैं जैसे अली ने कहे हैं, but I feel this is a little genre breaking, and वो relentlessness जो है, if that comes out well and if audience is gripped, job half done. Hello sir. हिमांशु, hi, Amit here from दैनिक भास्कर आपके सामने. Yes. हिमांशु, आपने कहा कि हमें मतलब इसमें रीच चाहिए ऑडियंस की, मतलब ऑडियंस की रीच चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मतलब जगहों पे ये फिल्म देखी जाएगी. लेकिन एक चीज हुई थी दिनेश विजन के साथ, जब उन्होंने स्त्री को थिएट्रिकल रिलीज से पहले ही मतलब ओटीटी को दिया था, तो वो सिर्फ 9 करोड़ में बिकी थी, जबकि उस फिल्म ने थिएट्रिकली 100 करोड़ 150 करोड़ से ज्यादा किया था. राइट. और ये फिल्म एक हेवी बजट की फिल्म है. ठीक है, तो वो चीज क्यों नहीं आपके जहन में रही कि मतलब क्यों ना 100 करोड़ क्लब में हम इसे एंटर करवाएं, रादर देन मतलब जियो पे लाएं, या जियो ने उतना दिया है? तो good question. Like I said, when anybody is setting out, as and I'll only speak on behalf of 3 of us. आपको जब किसी चीज एक कहानी कहनी होती है, तो फर्स्ट थॉट वहां से आता है कि क्या कहानी आपको कहनी है. और ऑफ कोर्स as makers, as content content makers and creators, we always want reach which maximizes to people, thereby justifies all that we have spent on the film, and everybody should be in a win-win position. अगर एक प्लेटफॉर्म किसी प्रोडक्ट पे, किसी डायरेक्टर पे, किसी ब्रांड एक्टर पे एक चीज इन्वेस्ट करता है, तो चीज हिट इस मामले में तब करार की जाती है कि when you have recovered your monies and everybody's made. So when this, like I said, अगर आप इसको 2 साल पीछे ले जाएं, when things were shifting, people were the viewing patterns were shifting, it was very important for mainstream, and when I say mainstream is people जिनकी reach wide है, जिन्होंने अपने कहानी से बहुत लोगों को reach किया है, a star who has a great social media presence, if they are radically thinking to partner on a film and bring something to the audience who's sitting there during that COVID wave, that was one way to look at it. And come to think of it, 2 साल पहले Jio had this vision and broad plan to sort of put in their money where their mouth is and partner with an A team to bring this so that maximum लोग इसे देखें इनके प्लेटफॉर्म पर. आप सब लोग IPL देख रहे हैं जियो सिनेमा पे, इट्स हमारी खुशकिस्मती कि हम वहाँ हैं. And now when this film is there, so this is bringing that subscription base, this is bringing the traffic there, so it solves the purpose in business sense for makers, for producers, for actor, your artists out there. Everything is sort of justified because you're bringing the traffic. और वो traffic कब आएगी? जब आपका content उनको invite करेगा, audiences देख रही हैं. तो I think it's sort of justified, और हर फिल्म को उस तराजू पे नहीं तोला जाना चाहिए कि ये X करे या X करे. I think it's a win-win for everybody. Just to add to that, एक second, अली, अगर ये ऑनलाइन आ जाती है, जैसे OTT पर आती है,
क्या फिल्म मेकर वो सैटरडे और संडे को बहुत रिलैक्स कर सकता है, या उस समय भी वही एंग्जाइटी रहती है कि यार क्या हो गया, क्या पिक्चर का क्या हुआ है? देखिए, I always say that the quantification of numbers is the love that you get for your product. प्यार से बड़ी कोई चीज नहीं है, और वो आपके प्रोडक्ट को जब मिलता है आपको पता चल जाता है, चाहे वो बॉक्स ऑफिस हो चाहे वो OTT हो. एज हिमांशु सेट, जो सबसे जरूरी चीज है जो लोगों को अब समझनी चाहिए वो ये है, जो मैंने पहले भी बोला, कि हम प्रोजेक्ट नहीं बनाते, हम फिल्में बनाते हैं, और फिल्म की सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है उसकी स्क्रिप्ट, उसकी कहानी. अब वो कहानी डिसाइड करेगी कि ये फिल्म OTT पे आनी चाहिए या थिएटर में आनी चाहिए, ठीक है. और 90% कंफ्यूजन ही यहां हो रहा है कि अब जब हम सर्टेन फिल्में बना रहे हैं और वो बॉक्स ऑफिस पे बड़ा बिजनेस नहीं कर रही, तो हम ना फिल्म मेकर्स को क्वेश्चन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि यार ये पिक्चर फ्लॉप हो रही है. पिक्चर फ्लॉप नहीं हो रही, क्या वो कहानी सही जगह पर आई या नहीं आई? एज आई सेड, कोविड ने सब कुछ बदल दिया है, हर इंडस्ट्री को बदल दिया है. हम एंटरटेनमेंट इज एन इंडस्ट्री, तो हमें अपने दिमाग के साथ एक सलाहियत से एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि एक कहानी है, क्या उसकी 100% जस्टिफिकेशन एक OTT प्लेटफॉर्म पे होगी जो एक पर्सनल व्यूइंग प्लेटफॉर्म है. व्हेन आई से OTT, आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देखते, OTT आप अपने फोन पे देखते हैं, अपने iPad पे देखते हैं, या अपने टीवी पे देखते हैं जब आप अकेले होते हैं. और कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको पसंद हो, आपके भाई को पसंद ना हो, आपकी वाइफ को पसंद ना हो, आपके पेरेंट्स को पसंद ना हो, उनको कुछ और OTT पे पसंद आ रहा हो. सो ये पूरा एक साइंस है, उस साइंस को आपको अडेप्ट करना पड़ेगा और फिर उस हिसाब से कहानियां कहनी पड़ेंगी. एंड द नंबर्स विल गिव यू द वैलिडेशन कि वो काम लोगों को पसंद आया या नहीं आया. इट्स नेवर क्वांटिफाइड कि 100 करोड़ क्लब में आई, 200 करोड़ क्लब में आई, 300 करोड़ क्लब में आई. दैट्स नॉट द वैलिडेशन ऑफ सक्सेस एनीमोर व्हेन इट कम्स टू OTT. एक सेकेंड, कैन यू माइक ले लीजिए. चिल्ला के बोल दो, ये पिक्चर का भी वैसे ही मूड है. एक्चुअली ये सवाल इसलिए आया क्योंकि मतलब शाहिद जिस स्टैचर के हैं, एक्टर स्टार हैं, वो 40 करोड़ ट्रेड कहता है कि उनकी फीस है. अरे दे दो मुझे यार. डेफिनेटली. कम बोला आपने, कम बोला है, कम बोला है, आपको बाद में मिलेंगे ये बार. सर ये मैं कम बोला है, ये तम बोला है, इसका प्राइस पहले पता करो जाके. डेफिनेटली. तो ये फिल्म मतलब उस हाई स्केल बजट की है, ठीक है. तो क्या OTT इस तरह की फिल्म को 100 करोड़ दे रहा है, या मतलब क्या कह सकते हैं हम? नहीं सर, हमने सबसे भाड़े पे लेके जियो को फ्री में दे दी पिक्चर. जितनी लागत है, जितनी जरूरत है, उतना OTT दे रहा है. आपको क्या लगता है IPL फ्री में आ रहा है, कितने का है? अच्छा देखो, यहाँ पे जो 3 लोग बैठे हैं, हम दुखी लग रहे हैं या खुश लग रहे हैं? सिंपल बात बताओ. अभी लुकिंग अनहैप्पी कि यार कहाँ फंस गए यार, क्या हम लग रहे हैं खुश? बताओ. हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं. तो जवाब मिल गया तुझे यार. पैसों की बात नहीं करते, पिक्चर की बात कर लेते हैं यार. पैसे तो सब कमा रहे हैं. और कोई सवाल? मैथमेटिक्स में मत घुसो, हाँ, झूठ समझो. यस यस.